السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عازمین حج آپ کی طرف سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا میڈیکل کب ہوگا۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میڈیکل کے لیے ابھی حج کمیٹی سے کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی گائیڈ لائن آئے گی گروپ کے ذریعے سے آپ حضرات کو بتا دیا جائے گا۔ کچھ سوالات آپ حضرات کے ذہن میں آتے ہیں، اس کے جوابات میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کور نمبر کیا ہے۔ تو کور نمبر یہ ایک شناخت ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے۔ 3 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، 5 لوگ ہوں، اس میں ایک آدمی جو ہے کور ہیڈ رہے گا، اور جو نمبر آپ کو ملتا ہے وہی آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ اب جو آپ کا کور ہیڈ ہوگا اسی کے موبائل پر میسیج آئے گا، یا آپ کا کوئی بھی حادثہ ہو گیا، کوئی بھی چیز ہوگی تو آپ کی جو رقم ہوگی وہ کور ہیڈ کے اکاؤنٹ میں آئے گی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کال یا کوئی بھی حج کمیٹی رابطہ کرے گی تو وہ کور ہیڈ کے پاس ہی اس کا ساری چیزیں رہے گی۔ جیسے ایک کور میں 5 لوگ ہیں تو 5 کے یہاں میسیج نہیں آئے گا، جو کور ہیڈ ہوگا اسی کے یہاں میسیج آتا ہے، اسی کے یہاں ساری ڈیٹیل آتی ہے۔ اسی طریقے سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بامبے میں ہیں، ہم دلی میں ہیں، ہم کہاں ہیں، اگر جب میڈیکل بننے والا ہوگا تو ہم کہاں سے بنوائیں گے میڈیکل۔ تو اس کے لیے ہے کہ آپ جہاں اعظم گڑھ میں ہیں تو آپ اعظم گڑھ میں جو لوگ ہیں وہ اعظم گڑھ سے کسی سرکاری ڈاکٹر سے آپ کو بتایا جائے گا، وہاں سے بنوا لیں۔ اور جو لوگ بامبے میں ہیں، دلی میں ہیں، ملک کے کسی بھی شہر میں ہیں، وہ وہاں سے جائیں گے سرکاری ڈاکٹر سے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا جو پروفارم آئے گا وہاں سے وہ اپنا بنوا لیں گے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر جو بتایا جائے گا آپ کو کہ یہ پے ان سلپ یا کیا کیا ڈاکومنٹ یہ اپلوڈ کرنا ہے، یہ حج کمیٹی کو بھیجنا ہے، جو ساری چیزیں رہیں گی وہ آپ کو آپ کے گروپ کے ذریعے سے آپ کو بتائی جائے گی۔ اسی طریقے سے کہ ہمارا ٹیکہ کب لگے گا، ٹیکے کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ جب یہ ٹیکہ دیکھیے، ٹیکہ جب یہ حج پر آپ جائیں گے تو اس سے 1 مہینہ تقریباً پہلے لگتا ہے۔ اور کہاں لگے گا یہ ذہن میں آتا ہے، کہاں لگے گا یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو کہاں لگے گا، اعظم گڑھ میں 3 جگہ ٹیکہ لگتا ہے۔ ایک مبارک پور میں لگتا ہے، ایک اعظم گڑھ شہر میں لگتا ہے، ایک سرائے میر میں لگتا ہے۔ تو اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے وہ ٹیکہ لگوا لیتے ہیں۔ اس میں ویکسین کا ٹیکہ رہتا ہے، دماغی بخار کا ٹیکہ رہتا ہے۔ اب جو لوگ ملک سے باہر ہیں ان کو یہ ہے کہ وہ ان کا ٹیکہ کیسے لگے گا، تو ان کا ٹیکہ یہ لگے گا جب وہ آپ واپس آئیں گے سفر حج پہ جانے کے لیے تو وہ اپنا ٹیکہ جو ہے لگوا لیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ دوسری قسط کب دی جائے گی، ابھی پہلی قسط دی گئی ہے، یہ اس کا پروسیجر ہے، کل یہ آخری ڈیٹ ہے 17 اگست۔ اس کے بعد پھر جو ہے 1 ہفتے 10 دن کے بعد دوسری قسط کا اعلان ہوگا، پھر بتایا جائے گا آپ کو کہ دوسری قسط جمع کرنا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو یہ بنا لیجئے کہ ہمیں 3 قسط میں پیسہ دینا ہے، اور یہ پیسہ حج کمیٹی کے اکاؤنٹ میں جائے گا، بیچ میں کہیں کچھ نہیں دینا ہے۔ اور پے ان سلپ کے ذریعے سے یا آن لائن کے ذریعے سے، یا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا UPI کے ذریعے سے یہ حج اکاؤنٹ میں سیدھے پیسہ جمع ہوگا۔ دوسری قسط جمع کر دیں گے، پھر تیسری قسط آئے گی۔ تیسری قسط کب آئے گی، تیسری قسط یہ آپ کو حج پر جانے سے پہلے آپ کو جمع کرنا پڑے گا۔ یہ تیسری قسط آپ کو حج سے جانے سے پہلے رمضان میں یا رمضان سے پہلے آ جائے گی، اس کے بعد اسے آپ کو جمع کرنا پڑے گا۔ بیچ میں اور آپ کو کوئی رقم کہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، جو حج کمیٹی بتائے گی وہی رقم دینا، اس کے علاوہ اور کہیں کسی کو 1 پیسہ نہیں دینا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوال آتا ہے کہ ہماری فلائٹ کب ہوگی، ہم کب جائیں گے۔ تو فلائٹ کے لیے ہے کہ پچھلے سال سے یہ ہے کہ آپ کو اپنی فلائٹ منتخب کرنے کا آپ کو اختیار ہے۔ جب شیڈول آ جائے گا اسی شیڈول کے اعتبار سے آپ چاہے پہلی فلائٹ، دوسری فلائٹ، آخری فلائٹ جو چاہے لینا چاہیں۔ اسی طریقے سے یہ سوال آتا ہے کہ امبارگیشن پوائنٹ، جب آپ نے فارم بھرا تھا تو حج کمیٹی آف انڈیا نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ 2 امبارگیشن پوائنٹ یعنی 2 جگہ سے آپ کو اپنے جانے کی روانگی کے انتخاب کر لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر دلی، ممبئی، لکھنؤ دلی، یا لکھنؤ ممبئی، یا جو بھی ہے، تو آپ نے جسے فرسٹ چنا تھا، اس کے علاوہ سیکنڈ پہ آپ نے دلی رکھا تھا یا سیکنڈ پہ آپ نے ممبئی رکھا تھا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے لکھنؤ چنا تب ہم دلی سے جائیں تو انہی دونوں آپشن میں سے آپ کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو حج کمیٹی کو پہلے اطلاع دینی پڑے گی، نہیں تو آپ کا جو پہلے سے رہے گا وہی لکھنؤ ہے تو لکھنؤ ہی رہے گا۔ پھر یہ آتا ہے کہ کیا لکھنؤ، دلی، بامبے میں پیسے کچھ کم زیادہ لگتے ہیں؟ ہاں، اس کا یہ جواب ہے کہ پیسے زیادہ لگتے ہیں۔ لکھنؤ یہ پرائیویٹ
कंपनीज़ को चलाती है एयरपोर्ट, इसलिए यहाँ जो टैक्सेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं बनिस्बत दिल्ली के, बनिस्बत मुंबई के। इसी तरीके से ये है कि अगर हमारे कवर में कोई आदमी छूट गया है, उसको हम ऐड कराना चाहें तो क्या ऐड हो सकता है? देखिए, एक कवर में कम से कम एक आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आदमी होते हैं। अगर 5 आदमी में आपके 4 आदमी, एक किसी कोई रिश्तेदार रह गया तो आप जो है उसकी एक मुअय्यना मुद्दत होती है। आप हज कमेटी को ईमेल करके अगर चाहेंगे तो हज कमेटी चाहेगी तो आपको उसको जोड़ सकती है। इसी तरीके से ये है कि हमारा जो लोग NRI हैं, इंडिया से बाहर हैं, उनको ये कि हमारा पासपोर्ट कब जमा होगा। तो आप ये जान लीजिए कि पासपोर्ट पिछले साल से पासपोर्ट नहीं लेती हज कमेटी, उससे पहले लेती थी। अब ये स्कैन करके आपके पासपोर्ट को ले लेती है। फिर पासपोर्ट जब आप आएंगे तो आप अपने साथ पासपोर्ट को लेकर जाएंगे। पासपोर्ट आपका जो है वो नहीं जमा होगा। हाँ, पासपोर्ट का डिक्लेरेशन फॉर्म एक आएगा, उसको भर कर जमा करना होता है। इसी तरीके से ये है कि पासपोर्ट पर के लिए हिदायत रहती है कि पासपोर्ट की हिफाजत ख़ुद आपको करनी है। अगर वो मुड़ गया या उसमें दाग लग गया या धब्बा लग गया या किसी तरीके से कट गया तो ये आपका सफ़र, आप इस हज के सफ़र से आप महरूम हो जाएंगे। पूरे पासपोर्ट की हिफाजत करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पासपोर्ट की हिफाजत कीजिए, उस पर दाग धब्बा या कोई ऐसी चीज़ न रहे। इसी तरीके से उसके जो पेज हों, कम से कम 4 पेज, 2 पेज खाली रहना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर कहीं आप किसी मुल्क में सफ़र किए हों और आपका वहाँ कोई मामला हो गया हो, आपका खुरूज हो गया हो या आपके साथ कोई चीज़ पेश आई हो, तो आपको हज के सफ़र पर जाने से पहले जिस मुल्क में आपने सफ़र किया था उस मुल्क की एम्बेसी में अपने पासपोर्ट की कापी भेजकर वहाँ से क्लियर करा लीजिए कि आप पर कोई गिरामा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। वरना अगर आप हज के लिए जाएंगे तो मदीना एयरपोर्ट या जिद्दा एयरपोर्ट पर आपको उस केस की वजह से रोक दिया जाएगा। इसी तरीके से आपके जहन में ये आता है कि हम कितना सामान लेकर जाएंगे। तो हज कमेटी से जो रहता है वो एक हाजी को 20-20 किलो अलाउ रहता है कि 20-20 किलो वो सामान ले जा सकते हैं, 2 बैगेज, और 7 किलो हाथ में, यही अलाउ होता है ले जाने के लिए। फिर ये होता है कि हम जो हज कमेटी हमें जो ले जाएगी तो वो घर से ले जाएगी या लखनऊ से हमें जाना। तो यहाँ से जो हज कमेटी लखनऊ तक जाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करती है, आपको एयरपोर्ट खुद से जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट जाना पड़ेगा या जो हज हाउस, तो हज हाउस जाना पड़ेगा। कितने दिन पहले जाना पड़ेगा? कम से कम 10 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा और 24 घंटे या 36 घंटे पहले ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो कि आपकी जो फ़्लाइट क्लियर होगी उसको रीकन्फर्म करने के लिए आपको ऑनलाइन जो है वो बताया जाएगा ग्रुप में कि आपको किस तरीके से रीकन्फर्म करना है। फिर वो सारे प्रोसेस को आपको समझाया जाएगा। इसी तरीके से ये कि हमें हज कमेटी जो हमने पैसा दिया है उसमें से कुछ पैसा वापस देगी, जैसे पहले देती थी। तो आप ये जान लीजिए कि पहले हज कमेटी 2100 रियाल देती थी, लेकिन ये कोरोना के बाद से, जो कोविड आया था उसके बाद से ये जो सिलसिला बंद हो गया। अब आपको कोई पैसा, 1 रुपया भी आपको वापस नहीं देगी। जो लेगी उसे आपके मसरफ़ पे वहाँ खर्च करेगी। तो वो अखराजात के लिए आपको अपने पास से पैसे ले जाने पड़ेंगे। कितना ले जाना पड़ेगा? तो कम से कम एक आदमी 2500-3000 रियाल का इंतज़ाम करे वहाँ खाने के लिए और जो है दीगर ज़रूरत के लिए। बाकी ये है कि ये रहता है कि हमारी कुर्बानी कैसे होगी। अगर आपने फार्म भरते वक्त उस पर टिक लगाया था कि हम कुर्बानी ले रहे हैं, यस करने लगाया था, तो आपकी कुर्बानी हज कमेटी उसी पैसे में कराएगी। अगर आपने टिक नहीं लगाया है तो आपको उसके लिए से पैसा जो है हज कमेटी को देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये है कि क्या वहाँ हज कमेटी हमें खाना देगी? हज कमेटी खाना नहीं देती है। अगर वो खाना देगी तो आपसे इस तरह पैसा लेगी। फिर ये रहता है क्या हम वहाँ पका कर खा सकते हैं? नहीं, वहाँ पकाने की गुंजाइश बंद हो गई। पिछले साल से जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये कर दिया है कि वहाँ जो है मतबख जो अलाउड रहता था, हर कमरे में जो किचन अलाउ रहता था उसको उसने बंद कर दिया है कि अब वो पका कर खा नहीं सकते। जिस तरीके से मदीने में रहता था कि हम होटल से खा लें, कैटरिंग से खा लें, या जो है हम बाज़ार से ला कर खा लें, ये सारी सिस्टम आपको रहेगा। आपको खाना पकाने की इजाज़त नहीं रहेगी। फिर ये कि हम राशन वगैरह ले जा सकते हैं? नहीं, राशन वगैरह ले जाने की एकदम इजाज़त नहीं। हाँ, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे चना वगैरह भुजा हुआ, ये सब ले जा सकते हैं। बाकी और कोई ऐसी चीज़ इजाज़त नहीं है। फिर ये होता है कि ज़हन में आता है कि हमारे पास अगर बीमारी है तो हम सफ़र करें, तो बीमारी के लिए कुछ क्राइटेरिया है। अभी 3 दिन पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया हज कमेटी को जो है
उस पर जो है सऊदी गवर्नमेंट से कुछ हिदायत मिली है कि कौन कौन सी बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अभी सर्कुलर आएगा उसमें आ जाएगा। इससे किसी की बहुत ज़्यादा सांस फूलने की बीमारी है, या भूलने की बीमारी है, या किडनी का मरीज़ है, या हार्ट का मरीज़ है बहुत तगड़ा जो है, या कुछ कोई कोई ऑपरेशन किसका बहुत बड़ा सर्जरी हुई थी, या इसी तरीके से हामिला औरतें हैं जिनके पेट में बच्चा है, तो ये सारी चीज़ें वो कैटेगरी आ जाएगी, सर्कुलर आ जाएगी। इसमें तफसील से आपको बताया जाएगा कैसा आदमी हज कर सकता है, कैसा आदमी हज नहीं कर सकता है। फिर ये कि अगर हम हज मनसूख कराना चाहें तो क्या होगा, हमारे कोई साथ थे या वो, तो आप मनसूख कराना चाहें उसमें से तो आप मनसूख करा सकते हैं। एक लोग को, दो लोग को, जो भी कराना चाहें, उसके लिए हज कमेटी के ज़िम्मेदारों से रब्ता कर कायम करके आपको जो है मनसूख करा सकते हैं। सिर्फ उसका पैसा आपको रिफ़ंड आ जाएगा। उसके लिए ग्रुप में बताया गया था कब कराएंगे तो कितना पैसा कटेगा। तो जो जब जब कराएंगे, जिस पीरियड पे कराएंगे, उसी एतबार से आपकी रकम जो है आपके अकाउंट से साबित कर दी जाएगी। इसी तरीके से अगर कवर हेड, किसी वजह से कवर हेड नहीं जाता है, तो जो बकिया हाजी लोग रहेंगे, तो अगर वो पहले बता देंगे तो फिर हज कमेटी उनके फार्म को एक्सेप्ट किए रहेगी। अगर वो कोई ऐसा है कवर हेड जो 65+ के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो कैंसिल होता है तो उसके साथ जो लोग रहेंगे 65+ वाले, वो रुक जाएंगे। इसलिए कि 65+ के साथ ये है कि उसका जो कंपेनियन हो वो 60 से नीचे का हो। अब 60 से नीचे वाला अगर कैंसिल करा दिया तो 65 वाला फंस जाएगा, उसको जो है दिक्कत आ जाएगी। हज कमेटी फिर उसको रोक लगा देगी। इसी तरीके से ये सवाल आता है कि क्या वहाँ मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मशाइर मुक़द्दसा में मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात में वहाँ जो है मौल्लिम की तरफ से खाने का इंतज़ाम होता है। फिर ये सवाल होता है कि क्या मर्द औरत या मियाँ बीवी एक ही कमरे में रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। तो पिछले साल से हज 2026 से जो कौंसल जनरल ने, ये सऊदी गवर्नमेंट ने, ये हज कमेटी ने ये सारी चीज़ क्लियर कर दी थी कि हाँ, जो मर्द होंगे और जो औरतें होंगी वो अलग अलग रूम में रहेंगे। वो अपनी सहूलत के एतबार से वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बकिया वहाँ जो इंतज़ाम उमूर से रहता है कि दोनों को अलग अलग रखा जाता है। बस ये होता है कि एक ही सेम फ्लोर पर और अगल बगल के कमरे में रहते हैं, ताकि जो आपको किसी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर ये सवाल होता है कि जो हम वहाँ ट्रैवलिंग करेंगे तो इसके लिए हमें अलग से पैसे ले जाने पड़ेंगे। नहीं, उसके लिए आपको पैसे नहीं ले जाने पड़ेंगे। जिद्दा से लेकर मक्का, मक्का से लेकर मदीना, या मक्का से अजीज़िया से रोज़ाना हरम, ये सारा इंतज़ाम जो है उसी पैसे में, जो आपने पैसा दिया इसी पैसे में आपका जो है वो अखराजात सब लिए हैं हज कमेटी ने, वो आपको वहाँ फ्री कराएगी कि ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसा नहीं देना। हाँ, जो आप बाल बनवाएंगे, हलक करवाएंगे, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। या एक्स्ट्रा आप उम्रा करेंगे जाकर मस्जिद आयशा से या तनईम से या ताइफ से, कहीं से भी उम्रा करेंगे एक्स्ट्रा, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा, वो हज कमेटी नहीं देगी। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा के अंदर जो ज़ियारतें हैं, तो क्या वो हज कमेटी कराएगी? नहीं, वो हज कमेटी नहीं कराएगी। उसके लिए आपको अपने तौर पर इंतज़ाम करना पड़ेगा। आप जो है अपने तौर पर ज़ियारत के लिए बंदोबस्त कर लें, गाड़ी से, बस से, जैसे चाहें वो आप करना चाहें कर सकते हैं। कितनी नमाज़ें मदीना मुनव्वरा में क़याम के दरमियान पढ़नी पड़ती हैं? 40 नमाज़ें जो है, 40 नमाज़ें। इसके लिए जो है कि 8 दिन 10 दिन कम से कम हज कमेटी 9 दिन वहाँ क़याम कराती है, ताकि आपकी 8 दिन के अंदर जो 5 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, ये 40 नमाज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएँ। फिर ये सवाल आता है कि हज सुविधा ऐप क्या है? हज सुविधा ऐप ये हुकूमत हिंद की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हाजियों की रहनुमाई के लिए एक ऐप है, जिसे आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो सारी डिटेल आपकी वहाँ पर आ जाएगी। वहाँ पे दुआएं मिलेंगी, वहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये हज के दरमियान आपको काम आने वाला एक ऐप है। इसी तरीके से आपको यह है कि हम वहाँ जाएंगे रियाजुल जन्ना में, तो हमें कैसे जो है परमिट मिलेगा। ये सुना जाता है कि नुसुक आईडी लगाना, ये नुसुक आईडी कैसे रहेगी? तो इसके लिए आपको एक दूसरा ऐप है जो सऊदी गवर्नमेंट का है, नुसुक ऐप। उस नुसुक ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब आप जाएंगे तो उससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले, अगर मदीना आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आप अपना स्लॉट बुक कर लेंगे रियाजुल जन्ना का, उससे आपको आसानी हो जाएगी। और आपको जैसे ही एयरपोर्ट पर जाएंगे, चाहे मक्का जाएँ चाहे मदीना जाएँ, आपको नुसुक आईडी जो है वह हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से आपको फराहम करा दी जाएगी, और उसे आपको हर वक्त पहनना रहेगा। इसी तरीके से ये सवाल आता है कि हम जो है
अपने कवर नंबर के अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हें अपने कमरे में ठहरा सकते हैं कि नहीं ठहरा सकते? आप नहीं ठहरा सकते हैं। जो एक फ़्लाइट जाती है उसके जो हाजी रहते हैं वो एक बिल्डिंग में रहते हैं और दूसरी फ़्लाइट जो जाएगी वो दूसरी। आप अपने तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें ये ज़हन के अंदर डाल दीजिए कि हज कमेटी एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट का है और वहाँ जो है सारी चीज़ें इज्तिमाइयत पर होती, इनफरादी नहीं रहती है। जो कुछ भी रहता है एक सिस्टम के साथ प्रोसेस पर होता है, वो ग्रुप के साथ होता है, वो कवर नंबर के साथ होता है। जो कुछ भी रहेगा एक कवर के जितने हाजी रहेंगे उनका मामला यकसा रहेगा। इसी तरीके से कि जो हम वहाँ जाएंगे तो राब्ते की शक्ल क्या रहेगी, हमारे पास मोबाइल रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो आप इंडिया के अंदर अपना मोबाइल यूज़ करते हैं उसी को इंटरनेशनल रोमिंग करा लीजिए। जब रोमिंग करा लेंगे तो यही मोबाइल आपका वहाँ भी काम करेगा और उससे राब्ते के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर यह है कि सवाल आता है कि वहाँ पर चलना बहुत पड़ता है, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए बेहतर सूरत ये होती है कि आप रोज़ाना पैदल चलने की आदत डालिए। एक ही दिन ज़्यादा नहीं है, पहले जब शुरुआत कीजिए तो आप थोड़ा सा चलिए, चंद कदम चलिए, फिर वापस हो जाइए, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर तीसरे। इसी तरीके से करते 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 कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर एक टाइम में, सुबह में 1.5 किलोमीटर चल दिए, शाम को 1.5 किलोमीटर चल दिए, 3 किलोमीटर चल दिए। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी हैबिट को बना लीजिए कि आपको चलने की आदत हो जाए, तो वहाँ आपको आसानी होगी। इसी तरीके से रूहानी तौर पर ख़ुद को तैयार करना और जिस्मानी तौर पर ख़ुद को तैयार करना कि हमारे अंदर तक़वा आ जाए, हमारे अंदर खौफ़ खुदा आ जाए, हमारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए। इसके लिए हम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें कि नमाज़ों का एहतमाम है, तिलावत का एहतमाम है। इसी तरीके से हम सदक़ात व खैरात करने वाले बन जाएँ और ये सोचें कि हम एक ऐसी इबादत के लिए जा रहे हैं जो इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है और जो बड़ी किस्मत से बहुत सारे लोगों के पास पैसे होते हैं, वसाइल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता, वो चाह नहीं सकते। इसी तरीके से हम अपने जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए बहुत मोहतात रहें कि हम जहाँ भी जाएं एहतियात से जाएं। कहीं भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एहतियात से रहें कि कोई हादसा ना होने पाए। और हमारे अगर कोई बीमारी लगी हुई है, कोई बीमारी है, किसी अच्छे मुआलिज से, किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करा के, अभी हमारे पास 7 महीने 8 महीने का वक्त है, हम अपने आप को फ़िट कर लें कि एक ऐसी इबादत के लिए जा रहे हैं। अगर हम फ़िट रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें इबादत करने में लज़्ज़त हासिल होगा, वो सुरूर हासिल होगा कि जब हम वापस आएंगे तो हमारी जो है दुनिया से जो है हम अपनी तवज्जो को हटाकर अपने रब की तरफ लगा लेंगे और ये हमारा सफ़र हज कामयाब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात के लिए आसानी पैदा फरमाए और सीखने का जज़्बा अता फरमाए और आप लोगों को सब्र करने की आदत फरमाए कि कोई भी चीज़ रहे तो आप हमें इंडिविजुअली तौर पर या हमारे जो ग्रुप के अंदर जितने भी ग्रुप एडमिन है, किसी के आईडी पर कभी भी आप जब चाहें जो है मैसेज करेंगे, इंशाअल्लाह आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। एक आदमी को करेंगे नहीं दिया, हो सकता है मसरूफ़ हो, दूसरे करिए आपको जवाब मिल जाएगा। और जो हमारे आज़मगढ़ की टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये खुलूस के साथ बग़ैर किसी माली लालच के सिर्फ़ रज़ा इलाही के लिए कि हमारा रब राज़ी हो जाए कि हम कुछ हादियों की खिदमत कर लें, ये सारे लोग इसी में लगे रहते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। जब भी हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ आती है तो बग़ैर किसी लालच के वो लग जाते हैं कि फ़ौरन आपको सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा फ़राहम करा दी जा सके ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर वक्त जो है आपकी खिदमत के लिए हम खुद्दाम आज़मगढ़ आज़मीन हज के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के सफ़र को आसान फरमाए।